तो हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में और यहाँ हम बात करेंगे यहाँ के आईआईएफएम के कुछ रिसर्चर्स से। तो शुरू करते हैं आज की बातचीत। तो पहले मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगा, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आप लोगों से पहले ये जानना चाहूँगा एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि आप लोगों का रिसर्च का सब्जेक्ट क्या है और आप लोग अपने रिसर्च के सब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, उसकी आज की सोसाइटी में या समाज में रेलेवेंसी कहाँ से आती है। नमस्कार, मेरा नाम राखी यादव है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में रिसर्च स्कॉलर हूँ। Hello everyone, myself Varun Das and I am a research scholar in Indian Institute of Forest Management and basically I am from Assam, Tejpur. मेरी रिसर्च जो है इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में है और मेरी जो रिसर्च है वो जाती है शहरीकरण का क्या असर हो रहा है हमारी जो प्रकृति है उसके ऊपर। तो जो मेरी रिसर्च है उसमें भोपाल एक ऐसा शहर है जिसमें पर पर्सन जो ट्री रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है ये शहर, और पूरे इंडिया में एक इकलौता ये ऐसा शहर है जो ये पूरी करता है। और भोपाल जो है वो एक झीलों की नगरी है और झीलों की नगरी प्लस ग्रीनरी ऐसा शहर जो कि एक शहरीकरण की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस शहर में एक डेवलपमेंट प्लान नहीं है। डेवलपमेंट प्लान क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा इस शहर पे काबू किए हुए है। तो इस शहर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ये पहचानने की कि वहाँ की इकोसिस्टम सर्विसेज किस प्रकार बदल रही हैं, कैसे यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर असर हो रहा है। और ये एक ऐसा शहर है जिसके पास शहर होते हुए भी इसका जो सटा हुआ जंगल है उसमें करीब 13 टाइगर रहते हैं और वो अक्सर शहर के लोगों को दिखते रहते हैं। तो और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कभी यहाँ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है इस शहर में। तो इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ रहना सीख लिया है। ये कब तक चलेगा ये नहीं जानते हम, पर मेरी जो स्टडी है वो इसी के ऊपर है। About my study, my research area is CSR, corporate social responsibility. So basically India is the first country who make mandatory for the companies or any organization to make compulsory expenses towards the for the society or towards the corporate social responsibilities. So basically why corporate social responsibility is important, because with growing industrialization there's an imbalance created between the human civilization and environment and forestry. So to improve that balance, that gap created by the industrialization since 1900 or 1800 onwards, to create that balance, the CSR play a crucial role in that particular field. So an other format that in my core area is in the CSR role of CSR initiative in northeastern region towards the sustainability development goal and to achieve net zero. So basically when we talk about the sustainable development and net zero, this is the basic one of the major target of government of India, and along with this CSR is contributing lots in the to achieve these particular areas and to achieve this target also. And my particularly I'm very much invested my time towards the CSR in northeastern region. Therefore there's a huge difference in the CSR in central India and the rest of the region. Basically northeastern region, the region which lack in industrial area, they are not getting enough fund through the CSR. So my research area is to make such holistic distribution approach across the country, so that every region, every state of the country get equal distribution of CSR from the companies in working in India. Yeah, thank you. So my question would be to you regarding the CSR particularly. So जैसा कि आपने कहा कि CSR is very unevenly distributed across the country, but even in the areas where you said that it's comparatively better, for example central India, the condition seems not that good. The companies, they can get away just by contributing a minimal amounts of funds and bearing the environmental pollution with the rest. So what are the things that you would propose to the government? What are the changes that we can make in our litigation policies, in our CSR policies, that can help us to achieve a more holistic corporate social responsibility? Yeah, basically, CSR is not a new concept in India. It is from the ancient time philanthropic activities used to happen in India. But when it comes to the CSR since 2013 onwards, because in a new Companies Act 2013 subsection
31, it's mandatory for the companies to spend certain amount of percentage of their profit in corporate development or society's development. But when we talk about the India, and then India is divided in an uneven state. Central India and South India has a very industrial, rich in industrial area, whereas the northern India, like Ladakh and Jammu and Kashmir, and the northeast India, they are lack in industrial areas. So basically in CSR it is mentioned that they have to do their CSR activities nearby area where their industries or headquarters is situated. It is not compulsory that they have to spend their money across the country. So basically company also see their profitability and then accessibility and feasibility where they can spend. If they industry is situated in Tamil Nadu, they prefer to spend the money in the Tamil Nadu because that is the main area where they used to do environmental exploitation or whatever it is. But when it comes to the unindustrial areas like northeastern region, they don't have any responsibilities because it's not mentioned in the CSR Act. So there's a lots of gray areas where we need to improve, because CSR it's only the 10 years law. So it has been only 10 years that government has make mandatory for CSR rules. Therefore we need to work lots, and from the environmental point of view we need a bigger contribution from the environmentalists to check out that this distribution mechanism which is currently run in India, that is not holistic in nature. So we have to do lots of work in this regard so that we can get a proper equal distribution of CSR across the country. Good answer for the question actually. My question is to you now कि जैसा कि आपने बताया कि मैनेजर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हुआ नहीं है, मतलब ऑल्दो टाइगर्स हैं, दे डू इनकाउंटर पीपल, बट वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं है. सो आप इसका रीज़न क्या देखती हैं? क्योंकि शहर बढ़ रहा है और शहर जंगल को इंक्रोच कर रहा है, और तो इट्स अफेक्टिंग द हैबिटेशंस ऑफ द एनिमल्स, राइट? तो इसके बाद भी वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं हो रहा है? उसका कोई रीज़न है, या कब तक ऐसा चल सकता है कॉन्फ्लिक्ट ना हो? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट इज़ बाउंड टू हैपन इफ़ यू गो ऑन दिस पाथ. इस सवाल का मैं ये जवाब देना चाहूँगी कि यहाँ जो भोपाल में जो टाइगर्स आते हैं वो जो है वो इनका जो कॉरिडोर है वो इस रास्ते से गुज़रते हैं. तो पहले क्या होता था कि जो टाइगर है राता, अभी भी यही होता है कि रातापानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको कि टाइगर रिज़र्व घोषित नहीं किया है अभी तक, वहाँ पे टाइगर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. जब वहाँ पे वो बढ़ जाती है तो वो मूव करने लगते हैं उधर से और आते हैं रायसेन और भोपाल डिवीज़न की तरफ. तो इस तरफ जब वो आते हैं तो वो शहर से उनका जो है वो कोइंसाइड करते हैं, उनका रास्ता उधर से. तो यहाँ पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि वो उस जंगल वाले एरिया में ही सीमित रह जाते हैं, और जो जंगल के पास रहने वाले लोग हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि उन्हें इन जंगली जानवर के साथ कैसे रहना है. तो वो अगर उनकी कैटल को जैसे लोग लेके जा रहे हैं जंगल में, और अगर वो उनकी कैटल को अटैक कर रहे हैं तो वो लोग अपने आप को उस जगह से बचा लेते हैं, कैटल को वो नहीं रोकते हैं जाने से, क्योंकि सरकार ने कॉम्पनसेशन जो है लोगों को देने की वो की हुई है. तो लोग जो हैं एक कैटल नहीं रखते हैं घर में, वो एक से ज़्यादा रखते हैं ताकि अगर उनको एक कैटल जा भी रही है तो उनका लाइवलीहुड जो है वो अफेक्ट ना हो. उसके अलावा जो लोग हैं उनका यही मानना है, जो आसपास के गांव में जो लोग रहते हैं, कि जो टाइगर है उसने उनके जंगल को बचाया हुआ है, उसने उनके लाइवलीहुड को बचाया हुआ है. अगर वो नहीं होगा तो लोग जो है इस जंगल को एकदम ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि टाइगर के नाम पे जो है बहुत सारे डेवलपमेंट फॉरेस्ट के जो एक्शंस हैं वो चलते ही हैं. तो मेरा बस यही जवाब है कि वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जो टाइगर है उसको अभी भरपूर मात्रा में जो उसको खाने को चाहिए वो अभी तक मिलता आ रहा है, और लोगों को जो है वो अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि टाइगर अगर दिख रहा है तो वो उसको परेशान ना करें, वो अपने रास्ते से जो है वो चला जाएगा. और यहाँ के टाइगर्स भी ऐसे ही करते हुए आए हैं. तो ये एक बहुत अच्छा को एग्जिस्टेंस जो हम असल में बोलते हैं वो यहाँ के लोग और टाइगर जो है वो कर रहे हैं अभी तक. मेरा एक और सवाल है, आप जो दोनों में से जो भी चाहे इसका आंसर दे सकता है, कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम खुद एक फॉरेस्ट के बीच में खड़े हैं और अगल बगल हमें इंक्रोचमेंट्स दिखाई दे रहे हैं कि ज़मीनों पे कब्ज़ा किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की जा रही हैं. तो इसका वाइल्ड लाइफ पे और यहाँ की जो लोकल प्लांट डाइवर्सिटी या स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कहिए, इसका उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा होगा. तो
जो जो असर हमें आँख से दिख रहा है वो तो दिख रहा है कि जानवर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इसके और क्या संगीन दुष्परिणाम हैं, इसके और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इसके और क्या ड्रॉबैक्स हैं जो इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं, जो कि एक आम आदमी नहीं समझ पाता, एक लेमैन की भाषा में अगर समझाना चाहें आप। बेसिकली क्या हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट के नाम पे जो सारे शहर में या इंडिया में कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, हर जगह पे कंक्रीट का वॉल, कंक्रीट के घर, कंक्रीटाइजेशन जिस तरह से बढ़ रहा है उस रेट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। इसके ऊपर कोई रिसर्च या कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। ये कंक्रीटाइजेशन की वजह से डेफिनेटली इट्स हार्मिंग द इन्वायरमेंट एंड द अदर स्पीशीज हु इज़ डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट। तो इसके ऊपर ये है कि ये एक वो सेक्टर है या सेगमेंट है जिसे छोड़ दिया गया है पूरी तरह से, कि कहीं भी आप कंक्रीटाइज घर बना दो, कहीं भी आप सड़कें बना दो, कहीं भी आप कुछ भी बना दो, तो इसका इफेक्ट जो हो रहा है उसके बारे में कोई नहीं पड़ा। आप अगर कहीं भी जंगल में एक अच्छा गेस्ट हाउस बना दिया, सब उस गेस्ट हाउस के बारे में तारीफ़ करेंगे, लेकिन उससे जो हार्म हो रहा है आसपास के एनवायरनमेंट को, उसके बारे में कोई बताने वाला नहीं है। इवन द गवर्नमेंट इज़ लिटिल बिट नेगेटिव टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस इन भोपाल एंड अक्रॉस द कंट्री ऑल्सो। इसका मैं एक जवाब ये देना चाहूँगी कि जो चाहे भोपाल हो या कोई भी, हर जगह जो है पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए और लोगों के पास बहुत पैसा है आजकल। तो पैसा जो है वो बोलता है, तो जो पैसा बोलता है तो जो लोग हैं उनको ज़मीनें ख़रीदने में बिल्कुल आसानी हो जाती है, और जब आसानी हो जाती है तो क्या जंगल और क्या एनवायरनमेंट, वो जो चीज़ें हैं लोगों के लिए, सरकार के लिए, सबके लिए, ये सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल आखिरी में आती हैं। सबसे ऊपर आता है कि हम जो है अमीर लोगों को खुश कर लें, हम जो है उनकी डिमांड्स पूरी कर लें, जो हमारी डिमांड पूरी कर रहा है हम उनकी डिमांड पूरी कर लें, जो हमें वोट दे रहा है हम उनकी डिमांड पूरी कर लें। तो यही जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है जो कि हर जगह चलता है। जो अगर सरकार ने डिमांड पूरी कर दी तो उनका जो है चलता आ रहा है। सेम भोपाल में चल रहा है कि लोगों के, बड़े बड़े लोगों के जो है इंस्टीट्यूशंस, फार्म हाउस, ये सब खुल गए हैं उस टाइगर मूवमेंट एरिया में, और उन बोर्ड्स पे बड़ा बड़ा लिख दिया गया है कि ये बाघ विचरण क्षेत्र है। अगर वो बाघ विचरण क्षेत्र है, वहाँ तुमने जाली लगा दी, फेंसिंग कर दी, बाघ का जो विचरण का क्षेत्र है उसको ही रोक दिया, तो लिख के बाघ थोड़ी पढ़ने आएगा कि वो बाघ विचरण क्षेत्र है। तो यही जो है इस शहर में चलता आ रहा है और उसके जो रास्ता है उसको बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस उसको मिल रही है। मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि ये चूँकि जंगल है मध्य प्रदेश का, एक विंध्यास का, तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिजिनस लोग भी रहते होंगे, आदिवासी रहते होंगे। तो जंगलों के ऊपर जो सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर पास में एक टाइगर रिज़र्व है, इधर भी एक टाइगर रिज़र्व बनाने की बात चल रही है, वेटलैंड है, तो इन चीज़ों का, जब उन चीज़ों का एक तरीके से ज़मीनों का जब सरकारीकरण कह लीजिए या शहरीकरण भी कह लीजिए हो रहा है, तो इसका जो लोग वहाँ पे काफ़ी समय से रहते आ रहे थे, यहाँ के अगल बगल आसपास भी कई लोग रहते होंगे, उनके जीवन पर इसका किस प्रकार का असर पड़ रहा है? आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से या अपनी स्टडी से अगर कुछ हमें बताना चाहें, जो हम कुछ ऐसी बातें जो हम नहीं जान पाते आमतौर पे। यहाँ क्या हर जगह के जो इंडिजिनस लोग हैं उनको राइट्स में ऐसे बोलते तो हैं कि हमने इंडिजिनस लोगों को जो है उनके राइट्स दिए हैं, ये सब दिया है, बट असल में जब अब जो अमीर और गरीब का जो डिफरेंस है वो उन लोगों को भी दिखता है। ये थोड़ी है कि अब वो पूरा ही जंगल पे डिपेंडेंट है, और जंगलों पे जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह में लाके जो इलीगल एक्टिविटीज़ का बोल के जो रोक लगाई गई थी लोगों के ऊपर, उससे उन लोगों की ज़िंदगी जो है वो एकदम बदल गई है। जब वो पहले जंगल पे डिपेंड रहते थे, अब क्या हो रहा है, अब जंगलों में फेंस लग गई है, तो उन लोगों का जो, ना उन लोगों के पास खेती के लिए कुछ है, ना उन लोगों के पास जंगल जाने के लिए कुछ है, ना वो लोग जंगल में घुस सकते हैं, लकड़ी तक नहीं उठा सकते हैं उस जंगल से। तो उन लोगों के पास अब बस एक ही रास्ता बचता है कि वो शहर की तरफ जाएं, वो अपना जो उनका जो भी उनकी अस्तित्व है उसको भूल जाएं कि हम जो है जंगल से जुड़े हुए लोग हैं, और वो बाहर जाके शहर की तरफ चले जाते हैं, और वहाँ जाके वो लोग अपना कारोबार जो और लोग संभालते आ रहे हैं वैसा वो लोग करने लगे हैं। तो क्योंकि उन लोगों को लगता है कि उनका कोई राइट ही नहीं है उनके ही जंगल के ऊपर, और लगता ही नहीं, यही होता ही आ रहा है। तो उन लोगों की ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा बदल गई है। और ऐसा ही नहीं कि मतलब उन लोगों को राइट्स मिले हैं, काफ़ी जगहों पे मिले हैं, बट हर जगह उन लोगों को नहीं मिले हैं, और
उनकी ज़िंदगियां जो हैं वो एक पूरा ही बदलाव ले चुकी हैं। अभी जो मैंने अपनी स्टडी में देखा है, लोग जो हैं कुछ नौकरियों की तलाश कर रहे हैं क्योंकि उनका जंगल बंद कर दिया गया है, कुछ जो है अपने खेत वेत खरीद लिए हैं, अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बदल चुके हैं पहले से, कुछ जो है वो क्योंकि उनके घरों के आसपास स्कूल बन गए हैं तो वो उन स्कूल्स में काम करने लग गए हैं, उन इंस्टीट्यूशंस में कोई छोटा काम करने लग गए हैं। तो अब उनका जो पहले का रहन सहन था वो सब बदल चुका है। मैं इसी से थोड़ा सा जुड़ा एक और सवाल जो भी आप दोनों में से पूछना चाह रहा था कि हमारा जो विकास का मॉडल है, हमारा डेवलपमेंट का जो मॉडल है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे हम शहरीकरण की बात करते हैं तो हमें दिख रहा है कि शहरों में जैसे तालाब होते थे तो तालाबों को पाट करके घर बना दिए गए, एयरपोर्ट बना दिए गए, तो इसका जो हार्म है वो किस स्तर का है? थोड़ा हमें पता है कि पानी का स्रोत हमारा चला गया, लेकिन उसके बाद एक जो वो चीज़ें जो एक आम आदमी नहीं समझ पाता कि इसका कितना बड़ा ड्रॉबैक है। जैसे हमारे पास में भी एक झील है, शायद कुछ साल बाद ये ना रहे, तो दिल्ली में गुरुग्राम में जो कि अरावली के आसपास का एरिया है, वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ में जो अर्बन डेवलपमेंट्स की गई हैं और EIA को तार करके जो की गई हैं जिसे आप कहते हैं, तो उसे आप किस तरह से देखते हैं? आप दोनों में से जो भी बताना चाहे। बेसिकली इंडिया का डेवलपमेंट मॉडल ही पूरा कन्फ्यूजन है। इसमें कोई ये नहीं बता सकता है कि इंडिया का जो डेवलपमेंट मॉडल है, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट स्ट्रेटेजी, डिफरेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड, डिफरेंट बेनिफिट फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो ये एक कॉमन गोल को लेकर डेवलपमेंट प्रोसेस चल ही नहीं रहा है। यहाँ पर मल्टीपल गोल है, पर्सनल गोल्स भी है, पॉलिटिकल गोल्स है, और इसमें इंडिजीनियस ग्रुप के उनके सेपरेट गोल्स है। तो इतने मल्टीपल्स गोल्स के साथ अगर आप डेवलपमेंट प्रोसेस या डेवलपमेंट करना चाहोगे तो इससे डेफिनेटली हार्म ही होने वाला है। अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे ग्रुप को नुकसान हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है तो किसी को फ़ायदा। तो बेसिकली अब इंडिया में आप देख लोगे, अब जब पॉलिटिकल पावर से जो पॉलिटिकल सिस्टम जिस तरह का है, वो पॉलिटिकल पावर एक काइंड ऑफ डेवलपमेंट मॉडल को सपोर्ट करता है। वो अगर बीजेपी की बात करें या किसी भी दूसरे सरकार की बात करें, वो अपना उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, उनका एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट गोल होता है। तो उस हिसाब से वो अपने मॉडल एंड मॉडल्स को बनाते हैं या डेवलपमेंट गोल्स को सेट करते हैं। लेकिन वो डेवलपमेंट गोल होलिस्टिक नहीं होता। अब साउथ, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल इंडिया, हर जगह वो अलग अलग है। इंडिजीनियस पीपल के डेवलपमेंट गोल्स अलग होते हैं, तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है। अभी आप एग्जांपल में बता दूं कि भोपाल में अगर कहीं पे कोई टाइगर रिजर्व बनने वाला है, तो वहाँ से जो उस टाइगर रिजर्व में जो गांव वाले अंदर जंगल में रहते हैं उनको रीलोकेट कर दिया जाता है किसी और जगह में। रीलोकेट के साथ उनको कंपेंसेशन दिया जाता है 15 to 20 लाख के आसपास है, तो वो अलग बात है। लेकिन जो अटैचमेंट रहता है, जो हैबिट्स उस पर्टिकुलर एरिया में उनके साथ था, जो इंटेंजिबल फीलिंग्स थे, वो सब गायब हो जाता है। तो जो इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल सर्विसेज थी, इन्वायरमेंटल सर्विस उनको मिलती थी, सेटिस्फेक्शन जो मिलता था, वो सब गायब हो जाता। तो सर्टेनली उनको ट्रांसफ़र करके एक नए जगह में भेज दिया जाता है जहाँ पे उनको कुछ पता नहीं है कि कहाँ क्या है। तो इससे जो उनको मेंटली और फिजिकली, मेंटली एंड देन कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं कि अगर ये एक गांव एक पर्टिकुलर लोकेशन से रिलोकेट करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, तो इसका कल्चर पे या इमोशनल अटैचमेंट जो होता है उन सब पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता आजकल। और इंडिया में जो डेवलपमेंट है उसको अक्सर फाइनेंशियल डेवलपमेंट जो है उस तरीके से देखा जाता है। तो हर डेवलपमेंट मॉडल जो है उसको देखा जाता है कि अगर फाइनेंशियल डेवलपमेंट कर दिया जाए लोगों का, जबकि उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं, अगर हम लोगों से जाके पूछे कि उनको असल में पैसों से ज़्यादा उनके जो एक एक दिन की जो चीज़ें हैं ना वो ही देख ली जाएँ, तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है लोगों का। बस यही। मैं ये पूछना चाह रहा था आप दोनों से कि जैसा कि आप दोनों लोगों ने बताया, काफ़ी सारी चीज़ें बताई, मैं पूछना चाह रहा था कि सिटी और फॉरेस्ट, क्या ये दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? और आज के दौर में क्या ये कोएग्जिस्ट कर रहे हैं? और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो इनका कोएग्जिस्टेंस का मॉडल किस तरह का होना चाहिए? हमें कैसी पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए? हमें किस तरफ देखना चाहिए कि सिटी और फॉरेस्ट दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकें? पहले तो अभी बहुत कम ऐसे सिटी रह गए हैं जिसके आसपास हमें फॉरेस्ट मिल जाएगा। तो अभी जो है, जैसे हम भोपाल में हैं और भोपाल की ही पास में जैसे वो वहाँ पे जंगल हम देख पा रहे हैं, तो
हम देख पा रहे हैं कि हाँ, जो शहर है वो कोएग्जिस्ट कर सकता है हमारा। सिटी फॉरेस्ट एक कंसेप्ट जो है वो चल रहा है, तो सिटी जो है वो फॉरेस्ट के साथ कोएग्जिस्ट कराने के लिए ग्रीन स्पेस जो है वो सिटी में है बना दिया जाता है, तो वो जो है खुद अपने आप को एक फॉरेस्ट में तब्दील कर लेगा। तो लोग सोच रहे हैं इस बारे में, पर उसके लिए स्पेस होना बहुत ज़रूरी है एक सिटी के अंदर, और जो स्पेस है वो रिक्वायरमेंट जो है वो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल से और अवेयरनेस से ही मिल सकती है। क्योंकि अब इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा वो एक डेवलपिंग नेशन है, अपने आप को डेवलप करने के लिए वो बहुत ज़्यादा इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, वो सिर्फ डेवलपमेंट करने में लगा हुआ है कि वो एक अपना फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर ले। तो इन सारी जगहों की एक सिटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक सिटी को लिवेबल बनाने के लिए उसको ओपन स्पेसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इन ओपन स्पेसेस का लोगों के दिमाग पे, लोगों के रहन सहन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो सिटीज़ को फॉरेस्ट अगर उसके आसपास है तो कोएग्जिस्ट करना चाहिए। और मेरे हिसाब से यहाँ के लोग जो हैं वो समझते हैं अच्छे से कि इन स्पेसेस की क्या महत्वपूर्णता है इन स्पेसेस की, और इन लोगों को मालूम है कि ये स्पेस जो है वो इन्हें क्या क्या इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो बेसिकली जो मॉडल है, एक मॉडल था, मुझे याद नहीं है, पर उस मॉडल के मुताबिक ये था कि आप अगर अपना घर से खिड़की खोलो तो आपको 4 पेड़ दिखना चाहिए कम से कम। अगर आप घर से 100 मीटर जाओ तो आपको एक पार्क मिल जाना चाहिए। तो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट मॉडल वेस्टर्न कंट्रीज़ में चल रहा है। सिंगापुर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल वेयर जंगल एंड सिटी फॉरेस्ट एंड द सिटी लिविंग टुगेदर। उन्होंने एक मॉडल अपने खुद क्रिएट किया, किसी से बनाया नहीं। तो हमको भी एक मॉडल बनाना चाहिए कि अपने पास मॉडल ही नहीं है। अब मॉडल नहीं हो, अब जब आपके पास मॉडल नहीं है तो हम फिर सिटी और फॉरेस्ट को एग्जिस्टेंस के बारे में बात ही नहीं कर सकते जब तक हमने उसका बैकग्राउंड स्टडी किया नहीं है या हमारे पास मॉडल ही क्रिएट नहीं किया। तो सबसे पहले तो हमको एक मॉडल क्रिएट करके उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कोई किसी भी स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में या रीजन में, ताकि वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं। क्योंकि इंडिया इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंट्री, इट्स नॉट ईजी टू फिट एवरी इम्प्लीमेंट ऑल द मॉडल्स इक्वली। सो इसके लिए एक बड़ा रिसर्च चाहिए, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी होना पड़ेगा जिसको इन सब चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग फाइनेंशियल डेवलपमेंट और या ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की जगह फॉरेस्ट डेवलपमेंट विथ सिटीज़ इन्वायरमेंट और ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी, ये सब तो आ रहा है, पर इनमें फॉरेस्ट का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। अब जब भी देख लो, डेवलपमेंट मैप्स देख लो, वहाँ पे फॉरेस्ट का कंट्रीब्यूशन कम है। ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, बट कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इज़ वेरी लेस ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स। मेरा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये होगा कि अगर आपको इन्वायरमेंटल डैमेज को, इन्वायरमेंटल डिटोरिएशन को रोकने के लिए 1 या 2 सजेशंस देने हो, कोई पॉलिसी अमेंडमेंट्स कोई भी, तो आप वो चेंजेस किन चीज़ों में देखना चाहेंगे? 1 या 2 जो आपको लगता है कि नीड ऑफ द आवर है, जो हमें जल्दी से जल्दी करना चाहिए। तो जो भारत जो है इसमें बहुत ज़्यादा हम देखते हैं, सुनते आ रहे हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है, इस शहर में पोल्यूशन हो रहा है, इस शहर में कम पोल्यूशन है। हम पोल्यूशन देख के शहरों में आजकल ट्रैवल करते हैं ये, और तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो हमारे मित्रगण हैं वो जाते हैं पहाड़ों में घूमने, हमारे मित्रगण हैं वो जाते हैं ठंडी हवाओं में, क्या वो लेने के लिए कि हम पोल्यूशन से दूर हो जाएं। तो सबसे ज़्यादा एक जो है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि लोगों को इंडिविजुअल व्हीकल की बहुत ज़्यादा आदत लग गई है, और उस इंडिविजुअल व्हीकल में भी लोगों को अगर 100 मीटर दूर भी जाना है तो उसको अपना व्हीकल लेके ही जाना है। अपनी बाइक, अपनी स्कूटी, अपनी कार के बिना उनको पैदल चलने में शर्म आती है लोगों को। साइकिल के नाम पे उन्हें लगता है कि हमने एक गरीब खिलौना ले लिया है। तो पहली चीज़ ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को हमें अब बहुत मजबूत करना चाहिए अपने यहाँ पर। दूसरा, हम जो ये पहाड़ों में जो जाके नुकसान कर रहे हैं वहाँ के लोगों की ना सोच के, अपनी सोच के, अपना 4 दिन का जो मस्ती मजाक है वो करके, और वहाँ पे हमने खबरें भी पढ़ी होंगी कि वहाँ पे हम इतना कचरा करके आ गए हैं, इतना प्लास्टिक करके आ गए हैं, माइक्रो प्लास्टिक वहाँ के क्या सब जगह के क्या बोलते हैं, पानी में, स्नो में, हर जगह आइस में जो है ये सब मिलने लगा है। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। तीसरा, जो फ्लड्स आ रहे हैं, हमें जो है नदियों का जो हम रुख जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमें नहीं करना चाहिए। और शहरीकरण जो है उसको, हर सिटी को हमें एक प्लान्ड तरीके से जो है वो हमें प्लान करना चाहिए, क्योंकि सिटी को
क्योंकि अब ये इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं कि हर सिटी को रिव्यू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो किस प्रकार बढ़ रही हैं, किस तरफ बढ़ रही हैं, और पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है उसको कम महत्वपूर्णता देके बाकी जो और भी बॉडीज़ हैं उनको थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता है महत्वपूर्णता देने की। सिर्फ पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है वो ही यहाँ पे अभी वर्क करता है, जो कि नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये सबसे पहले हमें अवेयरनेस का जो लेवल है उसे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको जब इन्वायरमेंट के बारे में पता चलता है तो मैं क्लास 12 पास कर चुका होता हूँ, तब जाके मुझे पता चलता है कि यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज या इन्वायरमेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे जब A4 एप्पल पढ़े उसी वक्त उनको ये भी पता चले कि A4 एप्पल के बाद दूसरे चीज़ें में B4 बॉल, C4 कैट की जगह ये अलग हो जाए। A4 एक्वाटिक, A4 एक्वाटिक, B4 बायोटिक, F4 फॉरेस्ट, इसी तरह का जो इन्वायरमेंट रिलेटेड वर्ड है वो ABCD के साथ एप्पल के साथ दूसरे चीज़ें भी। अगर A4 एप्पल होता है तो F से फॉरेस्ट होता है, अगर फॉरेस्ट ही नहीं होगा तो एप्पल कहाँ से आएगा। तो उसी तरह से अब लिंक करो उस ग्रास रूट लेवल से हमें वो वर्क करना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर जनरेशन जो है वो उनका जो थॉट प्रोसेस या उनका डेवलपमेंट प्लान या उनका वे ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स एनवायरनमेंट दैट सपोज टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अस। सो मुझे लगता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड इट विल प्ले क्रूशियल रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री सेक्टर इन इंडिया। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करते हैं कि आपको ये बातचीत अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको ये बातचीत कैसी लगी। धन्यवाद।